Hello everyone and welcome to the programming session on the topic functions. So here we are going to see whatever we have discussed in the concept lecture on lectures on functions, right? So let us start with the main function only. Here the void is the return type of main function, means main is not returning any value to any other function. So let us first create one function. So I am just creating one function, that is a void. I will first use void add, then what we will do, we will now let's say input process plus display will be done in this function. So I am creating two variables, int a is equals to 10 and b is equals to 20, which serves as the input to these variables. Then I will require one more variable, let us say int sum is equals to a plus b, right? This is so the value of a plus b will get stored in the sum function. This is the process part of the function, right? And then I am writing the printf function to display the value of sum. So sum is equals to %d double quote comma and sum. So what it will do, it will display the value of sum, right? So we have function is declared and it is defined, right? So here I will only have to call. So this is the display part, or you can say this is the output part, display part, input process display. So now I will only call by the variable. You must match this or number of arguments passed from this. So here no argument is written, hence you will not use any argument, you will only call the function. This is called as calling a function, right? So let us run the program and see the output. So you can see sum is equals to 30. You can also change some value, it will give you that output, right? So this is the first part of function, that is we have done everything inside it, input process display over here and calling from some external function, right? So second type of combination that you can have is, now what you will do, so I am writing it here, add. Now in the add function we will process and display the information, and you will send, so input we will be doing from main function, right? So input from main function, right? Process and display input, process and display will be from add function. So I am cutting this line from here and I am pasting this line over here, right? You will require one variable over here. So this is int a comma b and int sum a comma b. Now how to pass the value? Now you can see, I will just remove this. This is input is done, process and display is done over here, right? So just for clarity I will remove those comments, ठीक है? अभी क्या करोगे आप,
यहाँ से ए और बी वेरिएबल को पास करोगे। ठीक है, अभी ये पास करोगे, दो वेरिएबल आप यहाँ से पास कर रहे हो, सो आपको यहाँ पर भी दो वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज इंट ए जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंट ए आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इंट ए सिर्फ यही ब्लॉक के अंदर पता है व्हाट इज़ इंटीजर ए। ये भी जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये सिर्फ यही ब्लॉक को पता है कि व्हाट इज़ इंटीजर बी। और यहाँ पर भले ही आपको नाम सेम दिख रहे हैं यहाँ पर, इंट ए इंट बी, बट मेन का इंट ए अलग है, इंट बी अलग है। इट इज़ जस्ट लाइक एक आपका क्लास है, उसके अंदर एक स्टूडेंट का नाम सपोज कुछ एस नाम का बच्चा है, दूसरा भी एस नाम का बच्चा है, दोनों के नाम सेम हैं बट दोनों बच्चे अलग हैं, राइट। ये एस जो है वो कहीं और स्टोर किया गया है आपके हार्ड डिस्क पे, मेमोरी लोकेशन पे, इसका एड्रेस कुछ और है, ये स्टूडेंट का एड्रेस कुछ और है। जैसे ही दो सेम नाम के बच्चों के एड्रेस अलग अलग होते हैं, वैसे ये दो वेरिएबल के नाम तो सेम है बट उसके एड्रेसेस अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए आपको ये अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, अभी ये ए और बी आपने यहाँ से पास किया, तो ये ए में चले गया, ये बी में चले गया, तो यानी इसका मतलब ये ए की जो वैल्यू थी वो इधर आ गई ए में, और ये बी की वैल्यू थी वो इसमें कॉपी हो गई। ठीक है, मार्क माय वर्ड, कॉपी हो गई इसमें। और फिर यहाँ पर उसने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम नाम का, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी हुआ, यानी ये प्रोसेस हो गया और ये डिस्प्ले हुआ। इसको रन करके देखते हैं अपन। आ गई सम इक्वल्स टू 33 अगेन। नाउ यू कैन चेंज सम डिफरेंट वैल्यू, सपोज आपने 78 किया, 88 आ गया। यू कैन कॉल द फंक्शन n नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर एक बार जैसे कॉल किया है, यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक 10, 40। ये सेकेंड बार कॉल किया आपने फंक्शन, तो आपको पहले 88 दिखाया, फिर 50 दिखाया। सिर्फ एक चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ यहाँ पर आपने दो फॉर्मल पैरामीटर्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, इंट ए कॉमा इंट बी। इंट डिफ़ाइन किया है तो इंट वैल्यू ही पास करो और दो ही नंबर में पास करो। यहाँ पर आपने सपोज़ 3 वैल्यूज़ डाल दिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने सपोज़ 3 वैल्यू डाल दिया। अभी तो ये कोड बराबर चल रहा है, बट यहाँ पे अपोज आपने अभी 10 डाला, 20 डाला और 30 डाल दिए, तो आपने फंक्शन सिर्फ दो ही पैरामीटर के लिए लिखा है, इंट ए कॉमा इंट बी। ये 3 के लिए काम नहीं करेगा। सी यहाँ पर क्या लिख के आया है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन ऐड, यानी आपने लिखा तो दो ही के लिए है बट आप पास 3 कर रहे हो। इसका मतलब आपने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे दी है। आर्ग्यूमेंट यानी ये कितने दे रहे हो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स 3 वैल्यूज़ पास कर रहे हो, इसलिए 3 आर्ग्यूमेंट, 3 पैरामीटर, इसलिए ये एरर देगा। ऐसा ही सपोज़ आपने गलती से सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया, तो वो क्या एरर देगा, वो बोलेगा टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन ऐड, यानी लिखा तो आपने दो के लिए है बट आप पास एक ही कर रहे हो, तो वो टेम्पलेट मैच नहीं करता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए वो एरर देगा। ठीक है, इसलिए याद रखो कि दो ही पैरामीटर्स वेरिएबल्स पास करना है और इंटीजर टाइप का ही करना है। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप 2, दैट इज़ प्रोसेस प्लस डिस्प्ले इन द फंक्शन एंड इनपुट फ्रॉम सम अदर एक्सटर्नल फंक्शंस। ठीक है, अभी तीसरा टाइप है इसमें। अभी मैं इसमें वापस से कमेंट ऐड करता सकता हूँ, ये आप इसको लिख लीजिएगा जब भी आप ये लेक्चर देखोगे, जस्ट नोट इट डाउन एवरीथिंग, तभी आपको समझेगा। सिर्फ सुनोगे तो कुछ नहीं समझेगा। कॉपी में लिखो इसको एज इट इज़ प्रोग्राम को, और फिर एक एक चीज़ें समझो। ब्लॉक डायग्राम बनाओ,
जैसे अभी मुझे करना है यहाँ पर इनपुट एंड प्रोसेस, इधर मुझे इनपुट लेना है, इधर ही प्रोसेस करना है, बट अभी मुझे डिस्प्ले इसको बाहर करना है। यहाँ पर मुझे मेन फंक्शन में वो डिस्प्ले करना है वैल्यू अभी, यानी मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे ये डिस्प्ले करना है तो मुझे वैल्यू को पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अभी मैं पूरा ही कोड वापस से लिखूँगा, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये अपने सैम्पल टेम्पलेट है नॉर्मल वाले, विदाउट कोई पैरामीटर एनीथिंग। अभी मुझे क्या करना है, इनपुट प्लस प्रोसेस मुझे यहीं पर करना है। सो मैं क्या करूँगा, मुझे इनपुट सबसे पहले देना है। सो इनपुट क्या है, इंट ए इज इक्वल्स टू 10 सपोज, और बी इज इक्वल्स टू 30 सपोज। आप इनपुट यूज़र से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये प्रोग्राम में अपन यूज़र से इनपुट लेते हैं। सो ए कॉमा बी आपने दे दिया, यहाँ पे लिखा आपने प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यूज़र से आपने पूछा स्कैन एफ लिखो, %d, 2 वैल्यूज़ चाहिए इसलिए 2 बार लिखो %d, कॉमा %a, कॉमा %b। इससे ये इनपुट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस के लिए आपको क्या लगेगा, एक वेरिएबल लगेगा सम a प्लस बी। ये हो गया प्रोसेस। अभी आपको डिस्प्ले बाहर करना है कहीं तो भी। ठीक है, तो डिस्प्ले बाहर करना है तो क्या है, इसको रिटर्न करना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू दूसरे फंक्शन को पास करनी पड़ेगी, थ्रो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सिंटैक्स है रिटर्न और इन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट जो भी आप वेरिएबल रिटर्न करोगे उसका नाम। एंड ऑलवेज रिमेंबर यू कैन ओनली रिटर्न 1 वेरिएबल एट अ टाइम। उसकी एक ही वेरिएबल वो फंक्शन रिटर्न करेगा, नॉट मोर देन दैट। और ये सम का वेरिएबल ये इंटीजर टाइप का है। सम वेरिएबल आपने इन टाइप का डिक्लेयर किया है, इसीलिए आपको ये वॉइड का अभी करना पड़ेगा इंटीजर। ठीक है, यानी अभी ये फंक्शन यहाँ से इसको वैल्यू पास करेगा। यहाँ पर शुरुआत में आपको सिर्फ कॉल करना है फंक्शन को, ये जैसे आपने कॉल किया ऐड फंक्शन। ठीक है, अभी जब ये ऐड फंक्शन कोई वैल्यू थ्रो करेगा, रिटर्न करेगा, तब उसमें आपको कलेक्ट करना है वैल्यू को। जैसे एक साइड से थ्रो किया तो दूसरा कैच करता है। अभी यही कैच करने के लिए यू विल राइट समथिंग लाइक इंट सपोज एडिशन। एक आपने एडिशन नाम का एक वेरिएबल ले लिया और ऐसा इज इक्वल टू लिख लिया। अभी ये यहाँ पर एक दो बात को समझिए कि दो चीज़ें हैं। यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है सिर्फ ये पार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है एडिशन नाम का। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन पहले कॉल होगा, ऐसा जाएगा वो, ये सब प्रोसेसेस होंगी, और ये जो रिटर्न करेगा फंक्शन वो वैल्यू वापस से इधर आएगी। जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इधर आएगी। यानी इसका मतलब क्या है, इट इज़ एज गुड एज आप लिख रहे हो, आप ये लिख रहे हो कि इंट एडिशन इज इक्वल्स टू सम, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, अभी जैसे ही उसने वैल्यू ले लिया, कैच कर लिया, अभी इसको आपको डिस्प्ले भी करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वापस से प्रिंटफ फंक्शन लिखूँगा, वैल्यू या फिर एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप का है इसलिए मैं %d लिख रहा हूँ, कॉमन वेरिएबल का नाम है एडिशन इसलिए मैं इसको एडिशन लिख रहा हूँ, बस इतना। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, इनपुट प्लस प्रोसेस एडिशन वेरिएबल में किया, ऐड फंक्शन में किया, और डिस्प्ले आपने मेन फंक्शन में किया। अभी मुझे 2 वैल्यूज़ पूछ रहा है, मैंने 20 डाला एंड 50 डाला। यू कैन सी एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 70। So in this way this third type works. Now what is the fourth type? Fourth type क्या है, मुझे सिर्फ I will once again erase everything. Once again I am telling you, you note it down everything
राइट, तभी समझेगा। ब्लॉक डायग्राम बनाओ तो ही समझेगा। सिर्फ सुनोगे 2 मिनट के लिए लगेगा आपको समझ रहा है, बट बाद में यू विल नॉट बी एबल टू डू कोड बाय योर सेल्फ. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली दैट राइट इट डाउन. ठीक है. सो एंड स्पेसिफिकली दोज हु आर एब्सेंट, you must write it down. Okay, so now the fourth case is I will only process here and I will take input here plus display here. Okay, so first I will write input int a comma b. अभी मैं यूज़र से नहीं ले रहा हूँ. int a is equals to 10, b is equals to 40. ठीक है, इनपुट ले लिया, डिस्प्ले करना है. ठीक है, यहाँ से पहले उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा. इनपुट के बाद क्या आता है? प्रोसेस होता है. सो मीन्स इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? फंक्शन को कॉल करो. ठीक है, कॉल किया आपने, अभी कॉल कर दिया, इसके अंदर में ये दोनों को भेजो, बिकॉज आपको प्रोसेस करने के लिए 2 वेरिएबल्स को पास करना पड़ेगा. यहाँ से पास किया तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स लगेंगे. अभी जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन ए और बी का, तो आई विल टेक सम डिफरेंट वेरिएबल नेम्स. यानी अभी क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ये ए की जो वैल्यू है वो जाएगी सी में, और बी की जो वैल्यू है वो जाएगी डी में, कॉपी होगी. ठीक है. सो इसके बाद I am creating one variable sum is equals to c plus d. That's all. This is the only processing part. Right? The processing is finished. Now you want to return, because display is to be done in main. So return sum. Just check if it is returning, then this variable is also int. The return type should be int. Right? सो यहाँ से थ्रो हो गया, रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर आपको कैच भी करना है. सो वंस अगेन यू नीड टू क्रिएट वन वेरिएबल दैट इज एडिशन. ठीक है. सो यहाँ पर अगेन आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. यहाँ पर 2 पार्ट है. सो ये पार्ट में सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा एडिशन करके, और ये इससे फंक्शन कॉल होगा ऐड करके. ए और बी इसमें पास होंगे रिस्पेक्टिव. इसमें ये होगा, ये रिटर्न करेगा वापस इधर. तो जो भी सम की वैल्यू आएगी वो एडिशन में ट्रांसफ़र होगी. राइट. सो इन दिस वे दिस प्रोग्राम विल वर्क. एंड डिस्प्ले भी इधर करना है. सो प्रिंट एफ एडिशन is equals to %d comma addition. I want to display addition variable. Right? Since this is online compiler, you need not to write that connow.h and getch or clear screen. It is automatically being done. So while using turbo compiler, you are supposed to add conio.h here also, stdio.h plus conio.h. Similarly, you will write clr scr and getch over here. Remember this point. So you can see addition is 50 is being displayed over here. Right? So ये 4 केसेस हमने देखे. चारों केसेस अलग से शांति से लिखो, सबको देखो कि क्या क्या चेंजेस किए हैं अपन ने सारे कॉम्बिनेशंस लिए हैं. पूरा का पूरा ऐड फंक्शन में करना, इनपुट प्रोसेस डिस्प्ले, फिर इनपुट और प्रोसेस ऐड फंक्शन में करना, कॉल एंड डिस्प्ले मेन फंक्शन में करना, ये भी लिया है. फिर प्रोसेस और डिस्प्ले ऐड फंक्शन में करना, मेन फंक्शन में सिर्फ इनपुट करना, ये भी लिया है. और अभी वाला भी पार्ट लिया है, प्रोसेस सिर्फ ऐड फंक्शन में करना, बाकी सब कुछ मेन फंक्शन में करना. तो दिस कैन हैपन ओवर डिफरेंट फंक्शंस. राइट? तो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ मेन फंक्शन ही चलेगा, ऐड फंक्शन ही चलेगा. यू कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस
यू कैन पास फंक्शन 1 से लेके फंक्शन 2 में पास कर सकते हो. यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम फंक्शन 2 एंड रिटर्न टू सम फंक्शन 3. You can provide input for function 3 to function 1 likewise, right? So you can have multiple functions. You can call add function from some other functions also. So it is not always necessary कि main से ही आपको कॉल करना है या main से ही वैल्यू पास करना है. जहाँ से वो फंक्शन कॉल होगा वहाँ से आप वैल्यू पास कर सकते हो, राइट? सो इस प्रकार हमने चारों टाइप्स देखे हैं. ये सारे टाइप्स कॉल बाय, पास बाय, वैल्यू वाले हैं. आपने यहाँ पर वैल्यू पास किया है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखो, कॉल बाय, पास बाय वैल्यू, यानी वैल्यू पास होगी. सेकंड पास बाय रेफरेंस है, उसका मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा बिकॉज इसके साथ उसको कंबाइन नहीं करूँगा. दिस इज़ प्रैक्टिस सेशन फॉर ओनली फंक्शंस. सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है. अभी एक सिंपली एक अपन ले लेते हैं एग्जांपल. इसके साथ ही यू कैन हैव मल्टीपल फंक्शन जो मैंने बोला था, तो ऐसे ही ऐड के तरह आप सब करके फंक्शन बना सकते हो जिसमें आपने सब्ट्रैक्शंस किया है. सो सी माइनस डी के जगह सी प्लस डी के जगह सी माइनस लिख सकते हो, रिटर्न सब कर सकते हो, ठीक है? और सिमिलरली जैसे आपने ये कॉल किया है वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन को भी कॉल कर सकते हो. जैसे मैंने अभी यहाँ पे एडिशन लिया था, तो अभी मैं यहाँ पे सब लेता हूँ और यहाँ पे सब फंक्शन को कॉल करता हूँ. इसमें मैं ए और बी को ही पास कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके एडिशन के जगह अभी मैं सब डिस्प्ले करूँगा. सो लेट अस सी क्या एरर आया. ओके, वी हैव टेकन द सेम नेम फॉर वेरिएबल एज वेल एज फंक्शन. यहाँ पे अपन ने फंक्शन का भी नाम सब लिखा है और वेरिएबल का भी नाम सब लिखा है. तो आई विल जस्ट चेंज दिस सब टू सब टी, सब टी, सब टी, and here also sub t. See, okay, this has to be corrected. This is subtraction. Right, now you can display 50 and minus 30. So in this way you can do. We will add one more division because it is a catchy how to do division, that is c by d. So since the division value can be float value, 3/2 करोगे तो 1.5 आएगा. So it will not reflect the decimal places. डेसिमल वो पास नहीं करेगा बिकॉज फ्लोट वैल्यू कैन ओनली होल्ड डेसिमल. इंटीजर वैल्यू में 1 2 3 4 ही होल्ड होगा. सो इसीलिए मैं आपको एक थर्ड भी फंक्शन दिखा रहा हूँ, डिवीजन करके. फंक्शन का नाम है डिवीजन और वेरिएबल का नाम मैं डिव लेता हूँ. इट इज़ सी बाई डी एंड दिस इज फ्लोट. दिस वन इज फ्लोट, this is float. ये होगा यहाँ पर. फिर वन मोर वेरिएबल लगेगा, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर इस सब टी हो गया, डिव करके वेरिएबल ले रहा हूँ. यहाँ पर भी डिव आएगा. यहाँ पर डिवीजन लिख रहा हूँ, डिवीजन परसेंट एफ एंड डिव, डिवीजन का डिव. लेट अस रन द प्रोग्राम एंड सी और व्हाट इज द एरर. ओके, सब टी नहीं होगा रिटर्न, यहाँ से div रिटर्न होगा. अगेन व्हाट इज द एरर. अच्छा, अगेन दैट फंक्शन नेम इज डिवीजन नॉट डिव. फंक्शन नेम आप कॉल कर रहे हो यहाँ पर, इसका नाम है डिवीजन. तो
so that was the wrong in that case. Okay, division is 0 दिखा रहा है because 10/40 हो रहा है. So let us we'll do b by a. So I will just lay d by c. Let us check this. Okay, we are doing one mistake. This should be also float, because whenever it will return, so वो division में जाएगा, right? So because you are doing int here, it was not printing it correctly because everything is in float. So you can see addition 50, subtraction -30, and division 4. So similarly you can declare and define multiple functions, जितने चाहो उतने करो, and call it correctly, pass the values correctly. void है तो void रखो, डिस्प्ले बाहर करना है तो void मत रखो, 2 वेरिएबल पास करने तो 2 करो, कुछ भी नहीं पास करना तो कुछ भी मत करो. बट टेक केयर ऑफ सिंटैक्सेस एंड टेम्पलेट. जैसा फंक्शन लिखा हुआ है वैसा ही आपको पास करना है, कॉल करना है, राइट? सो आई होप this 30-minute video lecture is sufficient to understand the working of functions. You also practice the programs on your own. यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, राइट? सो आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ नॉट वन डे टास्क. ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट? सो हैव अ गुड डे एंड कीप वॉचिंग.